المسلمين اکبر الدین اویسی صاحب. میں کھڑے رہوں گے یہاں پہ, میرا کام ہے یہاں پہ. قائدین مجلس, سننے والے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں, جناب ناصر صدیقی آپ کے صدقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں اور آپ تمام کی دعاؤں کا متمنی ہوں اور آپ تمام تمام کے درمیان میں یہ درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں. انتخابی سرگرمیاں کل اختتام کو پہنچے گی اور اس انتخابات میں آپ نے ہمارے میری مراد اتحاد المسلمین کے قائدین کے تقاریر کو بھی سنا. آواز کم رکھوں گا اس کی طرف
بعد میں کرتا ہوں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ کل 18 تاریخ کو انتخابی جو کیمپیننگ ہے اس کا اختتام ہوگا، اور آپ نے مسلسل ہمارا تعاون کیا، ہمارا ساتھ دیا، ہماری ہمتوں کو باندھا، اور جب جب ہماری آواز میں کمزوری آتی تو آپ کے پرجوش نعرے ہماری آواز کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں آپ تمام کا کم ہے کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا تعاون کیا، اپنے مفید مشورے دیے، اپنا قیمتی وقت دیا، دوروں میں شامل رہے، اور جلسوں میں آپ نے اپنے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور الحمدللہ آج میں اس موقف میں ہوں کہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی محنتیں، آپ تمام کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور اس مرتبہ دنیا دیکھے گی کہ ایک حیرت انگیز کامیابیاں مہاراشٹرا کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوگی۔ نہ صرف آپ کے شہر بلکہ ممبئی، بھیونڈی اور دوسرے علاقوں سے بھی مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رچے گی۔ تو میں آپ تمام سے زیادہ دیر مخاطب نہیں رہوں گا، کیونکہ مسلسل آپ نے ہمارے خطاب کو سنا، ہم سب کو سنا، اور ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی تقاریروں کو بھی آپ نے سنا۔ بس یہی آپ کے درمیان میں اپیل لے کر آیا ہوں کہ آج اس جمہوریت کے جشن میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹ کے استعمال کو کرنا لازم و ضروری ہے۔ جتنی زیادہ ہماری پولنگ پرسنٹیج ہوگی اتنی ہی بڑی ہماری کامیابی ہوگی۔ بے شک آپ لوگوں نے مسلسل 15-20 دن سے جلسوں میں، جلوسوں میں، دوروں میں، میٹنگوں میں شرکت کرے ہیں، کافی محنت کی، لیکن یاد رکھیے اصل محنت کا دن 20 تاریخ کا دن ہے۔ اگر اس دن ہم غافل رہیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جائیں گے ووٹ ڈالیں گے، ہاں
थोड़ी देर से जाएंगे। सबसे पहले अपना ये जिम्मेदारी जो ओढ़ डालने की है, अलस सुबह फजर की नमाज को अदा करिए और पोलिंग बूथ में कतारों में खड़े हो जाइए। अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल कीजिए और उसके बाद आके घर में आराम कीजिए। और एक अहम बात कि आज आपकी मोहब्बत, आपकी यहां पे मौजूदगी, आम खास मैदान का जलसा और फिर आज का ये वालेहाना जो पदयात्रा थी लेकिन एक जुलूस का शक्ल इख्तियार कर ली, इसको देखकर हमारे दुश्मन जरूर नए नए साजिशें और मंसूबे बनाएंगे। और सबसे पहला मंसूबा उनका क्या होगा कि आपको छेड़ो, आपको गाली दो या आपके लीडरों को बुरा बोलो तो आप जज्बात में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और हमारे लीडर को बोले, हमारी जमात को बोले, मुझे बोल रहा बोलकर आप गुस्से में जाएंगे, वो लड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारी पोलिंग मुतासिर होगी, हमारी पोलिंग मुतासिर होगी। जिसको जो बोलना है बोलने दो। 20 तारीख के दिन जिसको बड़ा पहलवान बनना है बनने दो, बड़ा हिम्मत वाला बनना है बनने दो। इंशाअल्लाह ताला 5 बजे के बाद मजलिस क्या है, हम क्या है, तब बताएं। देखो, याद रखो, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम अपने पसंद के मुकाम पे अपने पसंद के वक्त में लड़ेंगे। मुकाम भी हम तय करेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे। जाल में मत फंसो, खुदारा मेरी बात को समझो। ये लोग की कोशिश रहेगी कि 10-20 लोगों को नारे लगाएं और मुझे इत्तलात है और मैं अपनी इत्तलात पुलिस के साथ भी शेयर कर रहा हूं। किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बाज गुंडों ने बाहर से और अपने गुंडों की फौज को बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि सिर्फ गड़बड़ करो और पोलिंग को स्लो करो। देखिए, ताकतवर और चालाक इंसान कौन होता है? वो होता है जो जाल को तोड़कर निकल जाता है। जज्बाती और गुस्से वाला शख्स जाल में फंस जाता है। देखिए, याद रखिए, मकड़ी का जाला है जरूर, चाहे तो उसको हटा के भी जा सकते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सब्र का मुजाहरा कीजिए, अल्लाह की बात पे कामिल यकीन रखिए। अल्लाह जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी देगा। नासिर सिद्दीकी साहब को भी कामयाबी देगा, इम्तियाज जलील साहब को भी कामयाबी देगा। और अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो हमारी शिकस्त हुई थी, ये मौका है उस शिकस्त का हमको मुनज़्ज़म मुत्तहिद रहते हुए इस जीत के जरिए और मजलिस के कामयाबी के जरिए हम इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। नासिर सिद्दीकी साहब को भी कामयाब करना है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि अपने घर में
अपने बुजुर्गों को ले जाकर वोट डालें। मैं बुजुर्गों से अपील करूंगा कि अपने घर के खवातीन को बोलें और नौजवानों को बोलकर अपना वोट डालें। आपसे मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम का ममनून हो, मशकूर हूँ कि आप तमाम ने 2 बजे से लेकर अब तक मुसलसल हमसे साथ चलते रहे और आवाम से इस मुलाकात के प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का जो इस इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हैदराबाद से आए जिम्मेदार मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मंजूर साहब हैदराबाद की और हमारे कॉरपोरेटर यहाँ के आपके शहर के पूरे जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस मैं आपके शहर के बुजुर्गों का, नौजवानों का, पर्दानशीन माँ और बहनों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी दुआएं थी, आपका ताउन था, आपकी रहनुमाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बड़े ही पुरअमन अंदाज में अपने इंतखाबी सरगर्मियों को इख्तिताम के मनाज़िर देखा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह तो इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह तो नासिर सिद्दीकी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह हमारे सारे भाइयों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। अल्लाह इस शहर के रहने वाले कामयाबी वो कामरानी अपनी जबान से अपने अमल जो हमारे अपने भाई जो हमसे किसी वजह से नाराज हैं, दूर हैं, उनको भी हम अपने करीब लाने की भरपूर कोशिश करें हैं मौला। ऐ अल्लाह इस कोशिश के बावजूद भी अगर किसी वजह से नाराज है तो मौला इनके दिलों में इनका मोहब्बत डाल दे और दूरियों का खात्मा कर दे, हमारे करीब ला दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना और हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का